So today we'll discuss about the functions of basal ganglia, and we'll discuss that what are the important circuits, those are playing the important role in the functioning of the basal ganglia and their disorders. So when you will see the basic structure of the functioning of basal ganglia, you have to follow this flow chart. That first of all we have the cortical fibers. Now these fibers, those are arising from the different part of the cerebral cortex, will go and relay into the striatum. They will relay into the striatum. Now if you will see here, what is the meaning of striatum? Striatum means we are talking about the caudate nucleus and putamen. We are talking about the caudate nucleus and putamen. And what is these fibers are now named as? They are named as corticostriatal fibers. They are known as corticostriatal fibers. So from the cerebral cortex you have the corticostriatal fibers which are going to the neostriatum or the striatum. Now if you will see, the further this striatum will project to the globus pallidus. It will project to the globus pallidus. Now if you remember the input of the globus pallidus, we have seen that there are two inputs to the globus pallidus. One is striatopallidal fiber and second is from the subthalamus. So here what is this is now known as striatopallidal fibers. Striatopallidal fibers. Now this striatum will also project to the substantia nigra. It also projects to the substantia nigra. Now this globus pallidus and substantia nigra will further project to the thalamus. So this is known as pallidothalamic fiber. So this is known as pallidothalamic fiber, and this is known as nigrothalamic. Now here we'll recall our lecture of the thalamus, where I told you that in the thalamus you have ventroanterior and ventrolateral nucleus. Ventroanterior and ventrolateral nucleus which are receiving the pallidothalamic and nigrothalamic fibers, plus it is dorsomedial nucleus and intralaminar nuclei. So these are the nuclei where this fiber will go. Basically mainly you will have these two nuclei, ventroanterior and ventrolateral nucleus. Now this thalamus then further project to the cortex, and they are known as thalamocortical fibers. What is that is known as thalamocortical fibers. So when you will see the working of the basal ganglia, you will realize that there are two components of basal ganglia in this chart. One is the striatum and another is the globus pallidus and substantia nigra. Now this striatum is receiving the influence from the cerebral cortex, and the striatum is further projecting to the substantia nigra and globus pallidus,
by striatopallidal fiber and striatonigral fibers, and these both are further projecting to the thalamus via pallidothalamic and nigrothalamic fibers, and this thalamus is ultimately projecting to the cerebral cortex. Now, in this basic part, you have to realize that basal ganglia is having 4 loops. There are 4 such loops, and these 4 loops work simultaneously. For the working of basal ganglia, such 4 loops are there, and these loops are known as motor loop. What are the name of those loops? First is known as motor loop, second is known as oculomotor loop, third is known as limbic loop, and the fourth is known as association loop. So, in nutshell, there are total 4 loops. What are the names? Motor loop, oculomotor loop, limbic loop, and association loop. Now, these loops are coming from the different part of the cerebral cortex. This motor loop is responsible for the modulation of the sequence of planned motor activity. This motor loop works with the basal ganglia to modulate the sequence of planned motor activity. जो हमारी मोटर एक्टिविटी प्लान हुई है उसमें कौन सा सीक्वेंस पहले होना है, कौन सा सीक्वेंस बाद में होना है, उसका अरेंजमेंट कौन करता है? मोटर लूप। लूप यही रहेगा, बट द प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द पार्ट विल चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द मोटर लूप द मेन प्रोजेक्शन कम्स फ्रॉम द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, in case of the oculomotor loop, here mainly you will have the frontal eye field. Frontal eye field. Now frontal eye field से जो projection होगा, that is again the part of cortex. So fiber name is remain same, corticostriatal fiber. और ये loop same रहेगा, but इस oculomotor loop का काम क्या है? Its function is that it controls the voluntary saccadic eye movement. Voluntary saccadic eye movement. Saccadic eye movement का मतलब होता है jerky और rapid eye movement. It is jerky type of eye movement where the person has to change the point of fixation rapidly. जैसा मैंने कहा कि अभी आप इस पेन को यहाँ देखिए and suddenly I will change the pen position and ask the patient to see the pen immediately with this, something like this. So this is known as saccadic eye movement. You have one more movement is known as pursuit eye movement. Pursuit eye movement is a slow movement of the eye. This is saccadic eye movement. That is rapid change in the fixation point. So ये जो voluntary saccadic eye movement है हमारे eye का, वो बेसल गैंग्लिया के ऑक्यूलर लूप से, ऑक्यूलोमोटर लूप से कंट्रोल होता है। देन यू विल हैव द लिम्बिक लूप। नाउ इन दिस लिम्बिक लूप यू हैव द फाइबर्स फ्रॉम द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस। और ये जो लिम्बिक लूप के समय जब आप इसको लिम्बिक लूप में पढ़ोगे तो लिम्बिक लूप रिस्पॉन्सिबल है आपके जो भी इमोशनल एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं उनका मोटर आउटपुट। यानी आपने एक जोक सुना एंड यू आर लाफिंग एज ए रिएक्शन ऑफ दैट जोक, और आफ्टर लिसनिंग सम टॉक यू आर गिविंग स्माइलिंग एक्सप्रेशंस और फ्राउनिंग। सो वो जो हमारा इमोशनल एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट के लिए मोटर आउटपुट आ रहा है दैट कम्स फ्रॉम दिस लिम्बिक लूप। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, ये लूप इसी तरह काम करेगा, बट द कॉर्टिकल फाइबर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, द प्रोजेक्शन एरियाज विल चेंज। देन यू विल हैव द एसोसिएशन लूप और द कॉग्निटिव लूप। नाउ ये जो कॉग्निटिव लूप है या एसोसिएशन लूप है,
ये आपकी जो कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी है जो आपने प्लान की है उसके डायरेक्शन को डिसाइड करती है। यानी व्हाट इज द एम्ड मोटर एक्टिविटी, यानी आपका ये फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर प्लानिंग टू ईट द फूड, तो आपका जो हाथ है वो आपके मुंह तक आए, वो ऐसा यहाँ ना चला जाए, यहाँ ना चला जाए, यहाँ ना चला जाए, इट शुड कम एंड टिल योर माउथ। सो जो एम्ड है हमारा मोटर एक्टिविटी, जो डायरेक्शन ऑफ मोटर एक्टिविटी है, दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय दिस लूप, इट इज नोन एज कॉग्निटिव लूप और एसोसिएशन लूप। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बेसल गैंग्लिया का एक बेसिक लूप स्ट्रक्चर क्या है। सो ये एक बेसिक लूप स्ट्रक्चर है और इसमें 4 तरह के लूप हो सकते हैं, मोटर, ऑक्यूलोमोटर, लिम्बिक एंड एसोसिएशन लूप। ठीक है, अब ये इसका हम ये पढ़ेंगे कि ये डिटेल्ड स्टडी में कि काम कैसे करता है लूप। तो उसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताऊंगा। विल फर्स्ट चेक अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर्स, दोज आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पार्ट ऑफ द लूप। सो यहाँ पे पहला न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट। पहला न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट। The first neurotransmitter is glutamate. The second neurotransmitter is known as gamma aminobutyric acid. Gamma aminobutyric acid, GABA. तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन। फोर्थ न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एंड फिफ्थ न्यूरोट्रांसमीटर है न्यूरोपेप्टाइडेज। न्यूरोपेप्टाइडेज, ये न्यूरोपेप्टाइडेज में आपका सब्सटेंस पी आता है। वन ऑफ द एग्जांपल इज सब्सटेंस पी। सो ये 5 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो बेसल गैंग्लिया के एक्शन में हेल्पफुल हैं। ठीक है, पहला है ग्लूटामेट, गाबा, डोपामीन, एसिटाइलकोलिन एंड न्यूरोपेप्टाइडेज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनका फंक्शन क्या है और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, सो पहला ग्लूटामेट। सो ग्लूटामेट कहाँ से रिलीज होता है? तो ग्लूटामेट आपको 3 जगह मिलेगा। ग्लूटामेट रिलीज होता है न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। Neurons, those are present in the cortex. Second, the neurons which are present in the thalamus. Neurons which are present in the thalamus. And third, the neurons of subthalamus. Neurons of subthalamus. So this is the important thing which you have to remember, that these 3 area neurons secrete the glutamate, and glutamate is excitatory in nature. Glutamate is excitatory in nature, यानी ग्लूटामेट जब भी साइनेप्स करेगा तो जिस भी न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, उसको एक्साइट कर देगा। ठीक है, सो दैट इज द ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट को हम जब भी पढ़ेंगे तो वो फाइबर्स जो कॉर्टेक्स से अराइज हो रहे हैं, जो थैलेमस के न्यूरॉन से अराइज हो रहे हैं और जो सब थैलेमस के न्यूरॉन से अराइज हो रहे हैं, उनके टर्मिनल एंड्स पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट क्या एक्शन है? एक्साइटेटरी। दूसरा गाबा। नाउ गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड और गाबा ये बेसिकली आपको मिलता है बेसल गैंग्लिया में। कहाँ मिलेगा ये? बेसल गैंग्लिया में। यानी आपको तीनों जो हमारे पार्ट हैं, तीनों जो पार्ट हैं कौन कौन से? कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस, ये तीनों जगह प्लस सब्सटेंशिया नाइग्रा के कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो भी गाबा रिलीज करते हैं। तो बेसिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा के 2 पार्ट हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा का रेटिकुलरिस होता है और एक
सबस्टेंशिया नाइग्रा का पार्ट कॉम्पैक्टा होता है। तो रेटिकुलरिस वाला जो एरिया है वो प्लस कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस, ये सारे मिलके जितने भी न्यूरॉन्स हैं इनमें, उन न्यूरॉन्स के अंदर से जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएगा वो क्या होगा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, दैट इज गाबा। तीसरा हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है डोपामीन। और ये गाबा का एक्शन क्या है, ये इनिबिटरी होता है। गाबा का एक्शन क्या है, ये इनिबिटरी होता है, मतलब ये जिस भी दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा वहां पे अगर गाबा रिलीज हो गया तो ये उसको इनिबिट कर देगा, उसको आगे एक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। सो ये है इनिबिटरी। तीसरा है आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। मेजर सोर्स ऑफ डोपामीन इज द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इनटू द पार्स कॉम्पैक्टा ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा के पार्ट कॉम्पैक्टा में कौन सा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, ठीक है। सो ये डोपामीन है। देन यू विल हैव एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज है वो होता है कुछ इंटर न्यूरॉन्स से। देखिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ बेसल गैंग्लिया की, है ना, पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। एसिटाइल कोलिन तो बहुत सारी जगह रिलीज होता है, बट यहाँ पे इस सिस्टम में आपको एसिटाइल कोलिन कहाँ मिलेगा, तो आपको एसिटाइल कोलिन मिलेगा स्ट्राइटम में। तो स्ट्राइटम के अंदर यानी कॉर्डेट न्यूक्लियस पुटामन के अंदर कुछ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। देयर आर सम इंटर न्यूरॉन्स एंड दीज इंटर न्यूरॉन्स आर नोन एज कॉलिनर्जिक। दीज इंटर न्यूरॉन्स आर नोन एज cholinergic and these interneurons releases the acetylcholine and acetylcholine is excitatory in nature। तो acetylcholine जिस भी इंटरन्यूरॉन, ये इंटरन्यूरॉन जिस भी न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा उस न्यूरॉन को ये एक्साइट कर देगा, ठीक है। एंड देन यू विल हैव द न्यूरोपेप्टाइडेज। ये न्यूरोपेप्टाइडेज भी उन्हीं न्यूरॉन से रिलीज होते हैं जिनसे गाबा रिलीज होता है, यानी बेसिकली फ्रॉम द न्यूरॉन्स ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा, स्ट्राइटम एंड ग्लोबस पैलिडस। तो नटशेल में आपने जाना कि हमारे पास मेजर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हैं ग्लूटामेट जो एक्साइटेटरी होता है, जो कॉर्टेक्स, थैलेमस और सबथैलेमस से आएगा, गाबा जो इनिबिटरी इन नेचर है, जो मेजर आउटपुट है आपके बेसल गैंग्लिया का यानी स्ट्राइटम एंड ग्लोबस पैलिडस का। डोपामीन इट इज मेनली कम्स फ्रॉम द पार्ट कॉम्पैक्टा ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा। एसिटाइलकोलिन ये इंटर न्यूरॉन्स से रिलीज होता है एंड दीज इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनटू द ग्लोबस पैलिडस एंड यू हैव द न्यूरोपेप्टाइडेज। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। नाउ वी विल सी कि जो हमने अभी न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े वो इस पाथवे में कैसे काम करेंगे। देखो ये आपका है कॉर्टिकोस्ट्राइटल फाइबर। कॉर्टेक्स से जो न्यूरॉन आएगा वो स्ट्राइटम पे क्या रिलीज करेगा, ग्लूटामेट। और ये जो ग्लूटामेट है, इस ग्लूटामेट की वजह से स्ट्राइटम के अंदर होगा एक्साइटेशन। सो इट विल कॉजेज द एक्साइटेशन ऑफ द स्ट्राइटल न्यूरॉन्स। स्ट्राइटल न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या रिलीज करते हैं, गाबा। तो वो रिलीज करेंगे गाबा। ये जो गाबा है, ये गाबा इस ग्लोबस पैलिडस को भी इनिबिट करेगा और सबस्टेंशिया नाइग्रा के पार्ट रेटिकुलरिस को भी इनिबिट करेगा। सो ये गाबा दोनों को इनिबिट कर देगा। अब बिकॉज इस गाबा की वजह से ग्लोबस पैलिडस के न्यूरॉन्स भी सप्रेस हो गए और सबस्टेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स भी सप्रेस हो गए, तो इनसे जो भी रिलीज होना था थैलेमस पे वो रिलीज नहीं होगा, ठीक है। इनसे रिलीज क्या होता है, वैसे गाबा, इनसे भी गाबा रिलीज होता है, लेकिन अब इन दोनों से गाबा भी रिलीज नहीं होगा क्योंकि दोनों न्यूरॉन्स, दोनों सेंटर इस ऊपर वाले गाबा ने सप्रेस कर दिए, बिकॉज इसका नेचर क्या है, इनिबिटरी। अब ये जो थैलेमस है इस पे सबस्टेंशिया नाइग्रा और ग्लोबस पैलिडस का जो इम्पैक्ट है वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो गाबा रिलीज होना था वो नहीं हो पा रहा। वो गाबा क्यों रिलीज नहीं हुआ,
क्योंकि उस गाबा को इस वाले गाबा ने सप्रेस कर दिया। ठीक है, यानी थैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेटेड हैं, वो सप्रेस नहीं हुए। सप्रेस कौन करता? ये वाला गाबा। तो वो जो न्यूरॉन्स हैं उनसे ग्लूटामेट रिलीज होता रहेगा। सो वहां से जो ग्लूटामेट आ रहा है वो ग्लूटामेट क्योंकि एक्साइटेटरी है तो वो कॉर्टेक्स को एक्साइट करता रहेगा। और हमें पता है कि कॉर्टेक्स से फिर आगे दो तरीके के फाइबर निकलते हैं, कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल। तो ये जाके लोअर मोटर न्यूरॉन पे एक्ट करेंगे। ये जाके कहाँ एक्ट करेंगे? लोअर मोटर न्यूरॉन पे। ठीक है, तो ये पाथवे कैसे काम कर रहा है कि आपका जो कॉर्टिको स्ट्राइटल फाइबर है वो स्ट्राइटम को एक्टिवेट करता है बाय द ग्लूटामेट, देन स्ट्राइटम से रिलीज होता है गाबा। गाबा जो है वो ग्लोबस पैलिडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा पे सप्रेशन करता है। उस वजह से इन दोनों से निकलने वाला फर्दर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो थैलेमस पे काम नहीं कर पा रहा। सो थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स से जो ग्लूटामेट आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से कॉर्टेक्स में जा रहा है। ठीक है, सपोज अगर ये जो स्ट्राइटम है, इस स्ट्राइटम से अगर ग्लोबस पैलिडस का जो सप्रेशन हो रहा है यहाँ पे ये गाबा नहीं आए, यानी अगर स्ट्राइटम में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, अगर स्ट्राइटम में जो न्यूरॉन्स हैं उनमें कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? ग्लोबस पैलिडस पे इनिबिशन खत्म हो जाएगा। ग्लोबस पैलिडस का इनिबिशन खत्म हो जाएगा, यानी अब ग्लोबस पैलिडस के जो न्यूरॉन्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। क्यों काम करना शुरू कर देंगे? क्योंकि वो पहले इनिबिट हो रहे थे, अब उनके ऊपर जो इनिबिशन है वो खत्म हो गया। तो अब ग्लोबस पैलिडस से भी क्या निकलने लग जाएगा? गाबा। क्या निकलने लग जाएगा? गाबा। और ये जो ग्लोबस पैलिडस वाला गाबा है अब ये थैलेमस को सप्रेस कर देगा। तो थैलेमस के न्यूरॉन से जो ग्लूटामेट आ रहा है इसका रिलीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यानी ये जो फाइबर्स हैं जो कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहे हैं वो एक्टिवेट नहीं करेंगे। और लोअर मोटर न्यूरॉन पे जो एक्शन है वो भी हमें कम दिखेगा, यानी पेशेंट के जो मूवमेंट है वो कैसे हो जाएंगे? स्लगिश हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मोटर एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक लूप है, मोटर लूप, और इसको अगर आप देखोगे तो ये कहलाता है डायरेक्ट पाथवे। दिस इज नोन एज डायरेक्ट मोटर लूप और डायरेक्ट पाथवे। ठीक है, तो इसमें जो ग्लोबस पैलिडस का पार्ट हम यहाँ ले रहे हैं, जो भी हमने लिया है वो कौन सा है? ग्लोबस पैलिडस इंटरनम। देखो आपको पता है ग्लोबस पैलिडस ये एंसा लेंटिकुलरिस, इस एंसा लेंटिकुलरिस के आप दो पार्ट पढ़ते हो, लेटरल साइड में होता है पुटामेन और ये होता है ग्लोबस पैलिडस। इस ग्लोबस पैलिडस के भी हम फिर दो पार्ट पढ़ते हैं, ये होता है ग्लोबस पैलिडस का एक्सटर्नल एरिया और ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नम, और ये होता है ग्लोबस पैलिडस इंटरनम। यहाँ पे जो ग्लोबस पैलिडस लिखा हुआ है ये इंटरनम वाला है। ये कौन सा वाला है? इंटरनम, इनर सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ग्लोबस पैलिडस से मेजर आउटपुट जो थैलेमस में जाते हैं वो इनर सेगमेंट से जाते हैं। थैलेमस को जो पैलिडोथैलेमिक फाइबर्स हम पढ़ते हैं, जो हमने डिस्कस किए थे, एंसा लेंटिकुलरिस एंड लेंटिकुलर फैसिकुलर, वो थैलेमस के अंदर जा रहे हैं, बट वो आ कहाँ से रहे हैं? इनर सेगमेंट से, यहाँ से आते हैं वो। सो ये जो हमने ग्लोबस पैलिडस लिखा, ये कौन सा पार्ट लिखा है? इनर सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनर सेगमेंट की। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लूप। उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लूप। अब ये इनडायरेक्ट लूप कैसे काम करता है? तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि जो आपका कॉर्टेक्स से फाइबर आ रहा है, कॉर्टिको स्ट्राइटल फाइबर, ये कॉर्टिको स्ट्राइटल फाइबर कहाँ पे रिले हुआ था? स्ट्राइटम में। और ये जो स्ट्राइटम है यानी पुटामेन एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये कहाँ रिलीज होगा? अब ग्लोबस पैलिडस में। लेकिन डायरेक्ट पाथवे है तो कौन सा पार्ट है ग्लोबस पैलिडस का?
इनर सेगमेंट। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होगा कि ये ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल सेगमेंट यानी आउटर सेगमेंट में यानी या लैटरल सेगमेंट में जाके पहले रिले होगा। ये जो स्ट्राइटम के फाइबर हैं स्ट्राइटोपैलिडल, ये कहाँ जाके रिले होंगे? आउटर सेगमेंट में। उसके बाद ये आउटर सेगमेंट प्रोजेक्ट करता है सब थैलेमस में। कहाँ प्रोजेक्ट करता है? सब थैलेमस में। और ये जो सब थैलेमस है ये अब प्रोजेक्ट करेगा किसके अंदर? ग्लोबस पैलिडस के इनर सेगमेंट में। अब ये प्रोजेक्ट करेगा ग्लोबस पैलिडस के इनर सेगमेंट में, और ये इनर सेगमेंट फाइनली क्या देगा? फाइबर्स जो थैलेमस में जाएंगे, दैट इज पैलिडोथैलेमिक फाइबर। और ये जो थैलेमस है अब प्रोजेक्ट करेगा कॉर्टेक्स को। ठीक है, तो डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे में क्या डिफरेंस हुआ कि अल्टीमेटली आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि जो पैलिडोथैलेमिक फाइबर्स हैं, जो पैलिडोथैलेमिक फाइबर्स हैं वो आते कहाँ से हैं? इनर सेगमेंट से। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट पाथवे है चाहे वो इनडायरेक्ट पाथवे है, अल्टीमेटली पैलिडोथैलेमिक फाइबर्स का सोर्स क्या है? इनर सेगमेंट। तो या तो आप स्ट्राइटम से सीधा इनर सेगमेंट में फाइबर रिले कर दो और ये चीज ऐसे चली जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या हुआ? बीच में आ गया ये दो चीज, यानी पहले स्ट्राइटम से आउटर सेगमेंट से सबथैलेमस और फिर इनर सेगमेंट। तो इसने क्या किया? ये रास्ता तो यही पकड़ा है, लेकिन यहाँ पे दो नए सब स्टेशन बन गए। ठीक है, स्ट्राइटम से आपको ग्लोबस पैलिडस के इनर सेगमेंट तक जाना है, तो या तो आप डायरेक्ट जा सकते हो या आप पहले आउटर सेगमेंट में जाओ, आउटर सेगमेंट से सब थैलेमस में जाओ, फिर ग्लोबस पैलिडस के इनर सेगमेंट से फिर वापस से यही रास्ता अपनाओ। ठीक है, अब ये जो इनडायरेक्ट पाथवे है, ये इनडायरेक्ट पाथवे कैसे काम करता है? देखिए, ग्लूटामेट रिलीज हुआ तो स्ट्राइटम से क्या रिलीज हुआ? गाबा। ठीक है, तो ये जो ग्लूटामेट है, इस ग्लूटामेट ने क्या किया कि स्ट्राइटम पे जाके गाबा का रिलीज बढ़ा दिया। इस गाबा ने क्या किया? इस गाबा ने इस ग्लोबस पैलिडस को सप्रेस कर दिया, क्योंकि गाबा क्या है? इनिबिटरी। गाबा क्या है? इनिबिटरी। तो गाबा का इनिबिटरी इफेक्ट क्या हुआ ग्लोबस पैलिडस पे कि यहां से भी जो गाबा रिलीज होना था उसका सप्रेशन हो गया, यानी अब ये ग्लोबस पैलिडस इस सब थैलेमस को सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये गाबा जो है वो रिलीज नहीं हो रहा। ये गाबा रिलीज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये वाला जो स्ट्राइटोपैलिडल फाइबर है उसने इसको सप्रेस कर दिया, यानी अब सब थैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं वो इनिबिशन के अंडर में नहीं है, उनके पास कोई इनिबिशन नहीं है, क्योंकि ये वाले जो फाइबर हैं दैट इज नोन एज पैलिडो सबथैलेमिक फाइबर, वो काम नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पा रहा है, बिकॉज दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ इनिबिशन ऑफ स्ट्राइटोपैलिडल फाइबर। तो यहाँ जो न्यूरॉन्स हैं उनसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लग जाता है, और सबथैलेमस से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? ग्लूटामेट। और ये ग्लूटामेट क्या है? एक्साइटेटरी। तो ये ग्लूटामेट इस ग्लोबस पैलिडस के इनर सेगमेंट को एक्साइट करेगा, और यहां से भी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगेगा? अब गाबा। और ये गाबा क्या है? इनिबिटरी। तो ये किसको इनिबिट करेगा? थैलेमस को बाय द पैलिडोथैलेमिक फाइबर। और इसके इनिबिशन से क्या होगा? ये जो कॉर्टिकल एरिया का स्टिमुलेशन होता है वो नहीं होगा, और अगर स्टिमुलेशन नहीं होगा तो मोटर एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल लेवल पे लोअर मोटर न्यूरॉन पे जो दिखना चाहिए वो भी हमें लेस दिखेगा, क्योंकि एक्टिवेशन ही नहीं हो रहा है पूरे सिस्टम में। यानी अभी हमने देखा कि जो डायरेक्ट पाथवे है वो क्या करता है? वो थैलेमस को एक्टिवेट करता है, लेकिन इनडायरेक्ट पाथवे थैलेमस को सप्रेस करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों हुआ? सिर्फ इस सब थैलेमस की वजह से। सब थैलेमस का जो एक्साइटेटरी ग्लूटामेट है वो ग्लोबस पैलिडस से गाबा रिलीज को बढ़ाता है,
और ये गाबा थैलेमस को इनहिबिट करता है, जबकि डायरेक्ट पाथवे में ये स्ट्राइटम का गाबा इस ग्लोबस पैलिडस के इनर सेगमेंट से रिलीज होने वाले गाबा को सप्रेस कर देता है। दैट मीन्स इसको हम एक वर्ड यूज लेते हैं, डिसइनहिबिशन। डिसइनहिबिशन, डिसइनहिबिशन मीन्स इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कहां से हो रहा है? गाबा से। और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर किससे इनहिबिट हो रहा है? इस गाबा से। सो इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, सो अल्टीमेटली थैलेमस का क्या हो गया? एक्साइटेशन। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट पाथवे है, इस डायरेक्ट पाथवे के थ्रू थैलेमस में मोटर एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है इन द कॉर्टेक्स। और इनडायरेक्ट पाथवे में चूंकि ग्लूटामेट आ गया बीच में, तो ये ग्लूटामेट एक्साइटेटरी नेचर है, तो ये इस ग्लोबस पैलिडस को एक्साइट कर देता है, और इसका जो थैलेमस पे इनहिबिशन है जो डायरेक्ट पाथवे में हम देखते हैं, वो यहाँ इनहिबिशन ना होके एक्साइटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट पाथवे में एक्साइटेशन दिखता है, और इनडायरेक्ट पाथवे में बिकॉज ग्लूटामेट ग्लोबस पैलिडस को एक्साइट करता है, तो गाबा ज्यादा रिलीज होगा और थैलेमस सप्रेस हो जाता है। ठीक है, सो नटशेल में आपको याद रखना है कि डायरेक्ट पाथवे इज एक्साइटेटरी टू द मोटर एक्टिविटी इन द कॉर्टेक्स, while indirect pathway is inhibitory or it decreases the activity of motor cortex. Now I will tell you कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका बेसल गैंग्लिया में क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पहली चीज याद रखनी है, जब भी हम एसिटाइल कोलिन का इम्पैक्ट देखेंगे, कि एसिटाइल कोलिन जब भी इंक्रीज होगा, ये बिकॉज एक्साइटेटरी है, तो ये क्या करेगा? आपके गाबा का रिलीज भी बढ़ा देता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है कि कोलिनर्जिक फाइबर्स की जब भी एक्टिविटी होगी, ये कोलिनर्जिक फाइबर्स गाबा के रिलीज को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या है? एक्साइटेटरी। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज है वो इंटर न्यूरॉन्स से होता है, दैट कम्स फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स। ये इंटर न्यूरॉन्स आपको कहाँ मिलते हैं? ये इंटर न्यूरॉन्स हमको मिलते हैं स्ट्राइटम में। दीज आर द स्ट्राइटम न्यूरॉन्स। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है कि एसिटाइल कोलिन, अगर कोलिनर्जिक फाइबर्स एक्टिवेट हो गए और एसिटाइल कोलिन का रिलीज बढ़ा, तो ये कोलिनर्जिक फाइबर्स जो कि इंटर न्यूरॉन्स से आते हैं, ये अल्टीमेटली साइनेप्स किससे करते हैं? गाबानर्जिक फाइबर्स से, अल्टीमेटली गाबा का रिलीज बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये मिलेंगे कहाँ? ये काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए हम वापस से उसी फ्लो चार्ट पे जाते हैं। तो जब हम उस चार्ट में जाएंगे तो वहां पे हम इनडायरेक्ट पाथवे की बात करेंगे। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये बेसिकली हमें इनडायरेक्ट पाथवे में मिलता है। ठीक है, तो आपके पास कॉर्टेक्स से जो फाइबर आए, कॉर्टिकोस्ट्राइटल फाइबर। नाउ ये जो कॉर्टिकोस्ट्राइटल फाइबर्स हैं, ये कॉर्टिकोस्ट्राइटल फाइबर्स, अगर हम ये इनडायरेक्ट पाथवे की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? पहले ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल और यू कैन से द आउटर सेगमेंट में, वहां से ये फाइबर्स जाएंगे सब थैलेमस में, सब थैलेमस से वापस से प्रोजेक्शन जाएगा ग्लोबस पैलिडस के इनर सेगमेंट में, और ये जो इनर सेगमेंट है ये फाइनली देगा फाइबर्स थैलेमस को, और थैलेमस से फिर फाइबर्स जाते हैं कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो ये हमारा एक इनडायरेक्ट पाथवे। अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन कहाँ काम करता है? देखिए, इसका सप्रेशन क्यों हो रहा है? ये सप्रेस हो रहा है क्योंकि ये सप्रेस है। ये सप्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक्टिव है। ये एक्टिव है तो यहां से गाबा रिलीज ज्यादा हो रहा है। अगर ग्लोबस पैलिडस एक्टिव है यानी ये गाबा रिलीज ज्यादा कर रहा है, ये गाबा इसको सप्रेस कर रहा है।
और ये एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये भी एक्टिव है, और ये एक्टिव है मतलब यहां से ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है। ये ग्लूटामेट इसको एक्टिवेट कर रहा है, यहां से गाबा रिलीज हो रहा है, और ये गाबा फर्दर इसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे इस एरिया में हमें मिलता है एसिटाइल कोलिन वाला इंटरन्यूरॉन। ये जो एसिटाइल कोलिन वाला इंटरन्यूरॉन है, ये इंटरन्यूरॉन बेसिकली यहां साइनेप्स कर रहा है। ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन का जो इंटरन्यूरॉन है, जब यहां से ACH का रिलीज बढ़ेगा तो इस इंटरन्यूरॉन से गाबा का रिलीज भी बढ़ेगा, और ये गाबा अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? आपका ग्लूटामेट यहां कम हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें इस एसिटाइल कोलिन का रिलीज कम कराना है, इसको हमें डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्राइटम है, इसका जो न्यूरॉन है वो इस एसिटाइल कोलिन का गाबा रिलीज से उसको सप्रेस कर देता है। देखिए अब हुआ क्या, इस पूरे टर्म में ये वाला न्यूरॉन कहाँ पे है? स्ट्राइटम में, और ये वाला न्यूरॉन कहाँ पे है? ग्लोबस पैलिडस में, और बीच में ये क्या है? दिस इज इंटरन्यूरॉन, दिस इज इंटरन्यूरॉन। और मैंने आपको बताया कि अगर एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट होता है तो गाबा एक्टिवेट होता है, लेकिन यहां से ये जो गाबा है, ये गाबा क्या करेगा? ये गाबा इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां से ग्लूटामेट आ रहा है। ठीक है, ये ग्लूटामेट इस गाबा के रिलीज को बढ़ाएगा, ये रिलीज गाबा इस एसिटाइल कोलिन को कम करेगा। एसिटाइल कोलिन के कम होने से यहां से गाबा का रिलीज कम होगा, ये लो गाबा सबथैलेमस के सप्रेशन को होने नहीं देगा, बिकॉज यहाँ गाबा कम है, तो ग्लूटामेट यहां से रिलीज होना बढ़ जाएगा। ये ग्लूटामेट अगर हाई हो गया तो आपका ये जो ग्लोबस पैलिडस का इनर सेगमेंट है, दैट इज द फाइनल आउटकम फॉर द पैलिडोथैलेमिक फाइबर, वो इसको सप्रेस करेगा क्योंकि यहां से ज्यादा गाबा आ रहा है, और अल्टीमेटली आपका जो कॉर्टिकल एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाता है। तो इस इनडायरेक्ट पाथवे में आपको यहां पे ये एसिटाइल कोलिन का इंटरन्यूरॉन नजर आ रहा है। तो हमने जो सप्रेस किया वो किसको सप्रेस किया? इस एसिटाइल कोलिन के इंटरन्यूरॉन को सप्रेस किया, और इसकी वजह से ये गाबा भी सप्रेस रहा। अगर आपने कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ा दी, यानी अगर आपने किसी भी रीजन से एसिटाइल कोलिन का रिलीज बढ़ा दिया, तो ये एसिटाइल कोलिन इस गाबा को बढ़ा देगा। अगर ये गाबा बढ़ गया तो ये सबथैलेमस सप्रेस हो जाएगा। अगर सबथैलेमस सप्रेस हो गया तो ये वाला पार्ट भी स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके स्टिमुलेशन के लिए जो गाबा ऊपर से जो ग्लूटामेट आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, और अगर ये सप्रेस हो गया तो ये थैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये थैलेमोकॉर्टिकल इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्ट पाथवे में नॉर्मल इम्पैक्ट क्या है? इट डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑन द कॉर्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, और डायरेक्ट पाथवे में बिकॉज हम यहां से सीधा यहां आ जाते हैं, बिकॉज हम यहां से सीधा यहां आ जाते हैं, तो ये वाला पोर्शन हम बाईपास कर जाते हैं। तो स्ट्राइटल फाइबर्स से जो गाबा रिलीज हो रहा है वो सीधा इस ग्लोबस पैलिडस को सप्रेस कर देता है, और आपकी थैलेमोकॉर्टिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सो दैट इज द रोल ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू द इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ बेसल न्यूक्लियाई। ठीक।